Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fourth module of the topic relation and function, and this is the most important module of the topic. In this module we are going to learn about the types of function. So let's start with the topic. First let me share the screen with you. Okay, so we know that this is the fourth module, and in the first module what we learned about the Cartesian product, domain, codomain and range in relation. Second module में we learned about the type of relation. Third module में we learned the concept of function, that how function is different from relation, and this is a very important module. In fact fourth and fifth are the most important class of this particular topic. In this module we will learn about the different types of function, composite of function, inverse of function. यहाँ से काफी सारे questions बनते हैं. Okay, let's start with the topic. First is called an identity function. So what is an identity function? So let R be the set of real numbers. Thus the real valued function f is from R to R, wherein R is nothing but the real numbers, by Y, which is the function of A, wherein A belongs to set R. This is called identity function. तो basically जैसे एक identity relation था, okay, that is the same way it is identity function. Here the domain and range of the function f are R. मतलब एक ही set को हमें दो बार लिखना है. एक ही set होता है इसमें. Here the set is R. So you can say if this is the set R, this is also the set R. So here each element of R has an image on itself and the graph is a straight line and it passes through the origin. तो 1 का mapping is with 1, 2 का mapping with 2, 3 का mapping with 3. तो अगर इसको हम x कोऑर्डिनेट बोल दे और इसको y कोऑर्डिनेट बोल दे तो कोऑर्डिनेट्स हमारे कुछ ऐसे बनेंगे 1 1 2 2 3 3. तो डेफिनेटली 0 0 ऐसा. तो ये वाला ग्राफ डेफिनेटली कैसा होगा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड इट पासिस थ्रू द ओरिजिन. ऐसा बन जाएगा. दिस पॉइंट इज 0 0, this point is 1 1, this point is -1 like this. Okay, so ये इसका एक straight line का ग्राफ बनाएंगे. Then it is a straight line graph and it passes through the origin. यहाँ पर दोनों elements दोनों जगह पे एक ही set होता है. Okay, that is called an identity function. Next is what is an equal function. So two functions f and g are said to be equal if and only if domain of f is equal to domain of g and codomain of f is equal to codomain of g, and function of x is equal to function of x is equal to this is also function of x and this is also function of x for every x belonging to their कॉमन कोड डोमेन. यानी कि दो फंक्शन अगर एग्जैक्टली सेम जैसे दिख रहे हैं तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे इक्वल फंक्शन. उनका डोमेन भी सेम होना चाहिए, को डोमेन भी सेम होना चाहिए, मैपिंग वगैरह भी सब सेम होनी चाहिए. देन वी विल से कि द फंक्शंस आर इक्वल फंक्शन. एक एग्जांपल लिखते हैं तो समझ में आएगा. सपोज let A is a set which has the elements 1 2 and B is a set which has the element 3 6. Okay, तो ये हमने एक सेट A बनाया 1 2, सेट B has the element 3 6 एंड फंक्शन जो है वो क्या डिफाइन हुआ है? फंक्शन इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का फंक्शन है. यानी कि इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 तो ये 1 की मैपिंग किसके साथ हो जाएगी? 1 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3. तो 1 का मैपिंग हो जाएगा 3 के साथ. एंड इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2 तो 2 का मैपिंग हो जाएगा 6 के साथ. करेक्ट. सो दिस इज द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2. नाउ सिमिलरली ये दूसरा फंक्शन देखते हैं. दिस इज फंक्शन f. ये फंक्शन f था. करेक्ट, f ऑफ x. और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x. so this is the function g of x और इसका क्या है? the function is 3x. यानी कि if I put x is equal to 1 so output हो जाएगा 3 and if I put x is equal to 2 तो output हो जाएगा 6. अब देख लो ये दोनों फंक्शन exactly same है. फंक्शन तो डिफरेंट है. this is x square plus 2 and this is 3x. but if you see that the domain is same. इसका डोमेन था 1 2, इसका भी डोमेन है 1 2, इसका को डोमेन है 3 6, को डोमेन इज 3 6. मैपिंग भी सेम हो रखी है. ये मैपिंग है उनकी 1 की मैपिंग 3 के साथ, 2 की मैपिंग 6 के साथ. दिस इज द मैपिंग. सो आई कैन से हियर दैट द fx एंड gx आर सेम. ये दोनों फंक्शन सेम है.
ठीक है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर फंक्शन टू बी इक्वल। चलिए, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें कौन कौन से आएंगे? वन टू वन फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन, मैनी टू वन, ऑन टू फंक्शन दैट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव, इनटू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। इन सब का मतलब क्या है ये देखते हैं। ओके चलिए, फर्स्ट इज वन टू वन फंक्शन दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव। सो व्हाट इज वन वन फंक्शन? वन वन नाम के जैसा ही है, एक की मैपिंग एक के साथ। ओके, सो वन टू वन फंक्शन is defined by function from set A to set B such that every element of set A is connected to the distinct element in set B. Every element of set A is connected to the distinct element in set B. अगर हम ये example देखें तो 10 is connected with 1, 20 का मैपिंग 2 के साथ, 30 का मैपिंग 3 के साथ। सो दिस इज अ प्रॉपर वन टू वन फंक्शन। फंक्शन की भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट बी। तो 10 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 20 का इमेज 2 एंड 30 का इमेज इज 3। नाउ व्हेन आई कम हियर 10 is mapped with 3 एंड 30 का मैपिंग भी 3 के साथ हुआ है, यानी कि दो लोगों की इमेज सेम है। 10 का इमेज इज 3 एंड द इमेज ऑफ 30 इज ऑल्सो 3। सो दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन, क्योंकि दो लोगों की मैपिंग एक के साथ हुई है। सो दिस इज नॉट वन ऑन वन फंक्शन। Perfect. Now, if set A has n elements and set B has m elements, wherein m is greater than n, then the but obvious m has to be greater than n, क्योंकि डोमेन की तो सारी मैपिंग होनी ही चाहिए कोडोमेन के साथ, अदरवाइज वो फंक्शन बनेगा ही नहीं। then the number of injective functions or one to one function is given by m factorial upon m minus n factorial। ठीक है, मतलब अगर सेट A में there are 4 elements and set B has suppose 6 elements and suppose हमें यहाँ से एक वन ऑन वन फंक्शन बनाना है, तो कितने वन ऑन वन फंक्शन बन सकते हैं? सो दिस इज नथिंग बट m factorial upon m minus n factorial. It means it is 6 factorial, this is m and this is n. तो 6 factorial upon 6 minus 4 that is equal to 2 factorial. ये बन जाएगा इसका आंसर। Perfect. 6 factorial is 720, 2 factorial is 2. So this answer is 360. Perfect. तो ये फॉर्मूला याद रखना है, वन ऑन वन फंक्शन के लिए ही ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैनी टू वन। अभी आप देख रहे हो ये था वन टू वन, यानी कि वन की मैपिंग वन के साथ, एंड दिस वन इज मैनी टू वन, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग है, दैट इज कॉल्ड मैनी टू वन, बहुत लोगों का एक के साथ, लाइक दिस। ओके, सो अ मैनी टू वन फंक्शन इज डिफाइंड बाय द फंक्शन from set A to set B such that more than one element of set A are connected to the same element in set B। मतलब दो लोगों की एक इमेज है। In many to one function, more than one element has the same image. So this is an example of many to one function. Here the mapping, the image of A is 1 and the image of B is also 1. So दो element A and B has got the same image, that is 1. Similarly, C का image is 3 and D का image is also 3. So C and D, both the element has the same image, that is 3. This is called many to one. देखो बहुत लोगों का एक element के साथ टाका बड़ा है। ठीक है, परफेक्ट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैनी टू वन फंक्शन। आप देख रहे हो वन ऑन वन और मैनी टू वन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज एन ऑन टू फंक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्जेक्टिव फंक्शन। इन एन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, every codomain element is related to the domain element. That is, in an onto function, no element of codomain is left without being mapped. मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है,
कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट खाली नहीं बैठा है. For a function f which is from set A to set B such that every element in set B has a pre-image in set A, this is called a surjective function. Example अगर आप देखें तो यहाँ पर देखो, ये हमें यहाँ पर हमारा ध्यान सिर्फ कोडोमेन में होना चाहिए. This is codomain and A का pre image is X, B का pre image is Y and C का pre image is Z and W. तो एक भी एलिमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर इन द डोमेन इन द कोडोमेन एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है. Whereas here you can see that A has a pre-image Y, C has a pre-image X and Z, whereas B का कोई pre-image नहीं है. B के साथ आपको कोई ऐसा एरो नहीं दिख रहा है बेसिकली. तो बेसिकली आपको ये देखना है इसमें कि कोडोमेन खाली नहीं होना चाहिए. Okay, so can we say that for and onto function or for the surjective function, range is codomain? Can we say range is codomain? क्योंकि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं है. यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज ABC is nothing but the element of the range and ABC are nothing but the elements of the codomain also. So here range is equal to codomain. ठीक है. Next, into function. Into function is exactly opposite of onto. करेक्ट. तो ये वाला जो फंक्शन था ये onto फंक्शन था. अगर ये onto है तो ये into नहीं हो सकता, और क्योंकि ये onto नहीं है सेकंड वाला फंक्शन, इट मींस इट इज एन into फंक्शन. If a function is not an onto function, it means that function is an into function. फंक्शन या तो onto होगा और अगर onto नहीं है फिर into होगा. What does this mean? This means that in into function, it is a type of function where at least one element of codomain will not have the pre-image in domain. कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए कोडोमेन में जिसका किसी के साथ मैपिंग नहीं है, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है. ज्यादा होंगे तो भी चलेगा, बट कम से कम एक मिल जाए, then it is called an into function. So suppose there are two sets A and B. This is one set A and this is set B. This is domain. This is domain, right? This we know. And this is codomain. If at least one element of set B is not associated with element in set A, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि there are 5 elements B1, B2, B3, B4, B5. B1 का pre image is A1, B1 का pre image is also A4, B3 का pre image A2, B4 का pre image A5, B5 का pre image A3, but ये B2 ये खाली पड़ा है. So this is not an onto function and hence it is an into function. Perfect. Next, one-on-one and onto function. Now onto function हमें याद है. onto function मतलब क्या? onto function का मतलब ये होता है कि here range is equal to codomain. And one-on-one function याद है, every element has a distinct element in set B, not many to one, one to one. Okay, ये दोनों चीज अगर कोई सेट में, कोई फंक्शन में सेटिस्फाई हो रही है, then we can say कि it is a bijective function, और you can say कि it is one-on-one and onto function. यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए and onto वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए. So a function that is both, that is one on one and onto, it is called a bijective function. Here every element of domain is connected to a distinct element in codomain. Yes, why? Because this is one on one function, and every element of a codomain has a pre-image. Why? Because this is an onto function. So ये दोनों conditions satisfy कर दे, then we will say कि it is a bijective function. Also in other words we can say that कि every element of set A is connected to distinct, ये तो वही चीज लिखी है. चलिए, now what is a bijective? Can we say this is a bijective function? तो देखिए, T का मैपिंग with 5 U is connected to 2, V is connected to 1, यानी कि हर एक का एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है इन सेट B एंड कोडोमेन पूरा भरा है.
कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कोडोमेन का जिसका मैपिंग नहीं हुआ है, सो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. Can we say this is a bijective function? No, we can't say this is a bijective function. Why? Because here x ka image is 1 and z ka image is also 1. So this is a many to one function, not one to one function. Similarly here in this particular third case, ये third case है, इसमें अगर हम देखें तो 3 का मैपिंग नहीं हुआ है, 3 does not have any pre image. तो ये तो on to function नहीं है, ये एक into function है. Okay, so this is not a bijective function. I hope the things are clear. Okay, so this is called a function. ये एक function का definition है. Function का definition क्या होना चाहिए? Function का definition ये है कि domain should have images in the codomain. ओके एक भी एलिमेंट डोमेन का खाली नहीं होना चाहिए. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. एक और फंक्शन का डेफिनेशन था, एक और फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आप बोल सकते हो कि एक एलिमेंट में से एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, और ये एक प्रॉपर फंक्शन है क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. विच टाइप ऑफ फंक्शन वी कैन से इज दिस? ओके, ये कौन सी टाइप का फंक्शन है? दिस इज वन टू वन फंक्शन. इसका मैपिंग इसके साथ, इसका मैपिंग इसके साथ, इसका मैपिंग इसके साथ. बट दिस इज एन इनटू फंक्शन. ये एक इनटू फंक्शन है क्योंकि ये एक एलिमेंट खाली पड़ा है, सो दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज एन इनटू फंक्शन. ओके, नाउ दिस इज, ये देखिए दो लोगों की मैपिंग एक के साथ हुई है, मींस दिस इज मैनी टू वन फंक्शन. इट मींस दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन, दिस इज many to one function, and every element of codomain का मैपिंग हुआ है सबके साथ. तो एक भी एलिमेंट कोडोमेन का खाली नहीं पड़ा है. ओके, सो दिस इज एन ऑन टू फंक्शन ऑल्सो, करेक्ट. एंड यहां पर एवरी एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सबका अलग अलग एलिमेंट है और पूरा कोडोमेन भरा पड़ा है. एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि जिसकी मैपिंग नहीं है. सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. सो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, चलिए we'll solve this question. The number of one to one function from set, suppose this is set A and this is set B. Set A has 3 elements, set B has 5 elements. तो how many number of one to one function is possible? NIMSET 2015 का ये क्वेश्चन है. इसका हमें फॉर्मूला पता है. फॉर्मूला क्या है? इसको अगर हम n बोल दे और इसको अगर हम n बोल दे, so number of elements in set A is equal to n, that is equal to 3. number of elements in set B को हम m बोलेंगे, that is equal to 5. फॉर्मूला था m factorial upon m minus n factorial. This formula you should know. So it is 5 factorial upon 5 minus 3 is 2 factorial. 5 factorial is 120, 2 factorial 2, answer is 60. Option D is the correct answer. Perfect. Next, are the following set of ordered pair function? If so, examine whether the mapping is injective or surjective. हमें ये बताना है ये कौन सा मैपिंग है, इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव. इंजेक्टिव का मतलब क्या है? वन ऑन वन फंक्शन. ओके, एंड सर्जेक्टिव का मतलब क्या है? इट शुड बी एन ऑन टू फंक्शन, मतलब कोई भी कोडोमेन खाली नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ क्या है इसमें देखिए, द फंक्शन इज function as the element x y wherein x is a person and y is the mother of x, ऐसा है. so, मान लेते हैं ये अपना एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स है x, एंड दिस इज सेट B जिसके अंदर एलिमेंट्स है y. y लोग कौन है? y वाले जो है वो ये मदर वाले लोग हैं और ये पर्सन है. तो आपको बताना है ये कौन सा फंक्शन होगा. ओके, सो वी नो दैट एवरी पर्सन हैज मदर, हर एक की माँ तो होती ही है. तो दिस, ये यहाँ पर एक भी ऐसा पर्सन तो नहीं होगा कि जिसकी कोई मदर ना हो. ओके, सो दिस इज अ प्रॉपर फंक्शन, दिस इज अ प्रॉपर फंक्शन. देखो फंक्शन के दो डेफिनेशन होते हैं. फंक्शन का एक डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन शुड हैव, all the elements in the domain should have the images. तो हर एक पर्सन की मदर होती है. सो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया.
एंड फंक्शन का एक और कंडीशन था कि ऐसे मल्टीपल मैपिंग नहीं होने चाहिए, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो हर एक इंसान की एक ही माँ होती है, दो माँ तो होगी नहीं, तो दिस इज अ प्रॉपर फंक्शन, दिस इज अ प्रॉपर फंक्शन। नाउ सपोज हियर the person are 1 2 3 and mother are ABC। ओके, तो मान लेते हैं कि 1 की मदर A है, 2 की मदर C है, एंड एक और डाल देते हैं, 3 की मदर B है एंड 4 की मदर भी A है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? या दो लोगों की, 1 की मदर A एंड 4 की मदर A, दैट इज पॉसिबल। ओके, सो कैन वी से दिस इज वन ऑन वन फंक्शन? नो, दिस इज नॉट वन ऑन वन फंक्शन, दिस इज मैनी टू वन फंक्शन, क्योंकि एक मदर के दो बच्चे तो हो ही सकते हैं। सो A के दो बच्चे हैं, वन इज 1 एंड अदर इज 4। So this is not one to one function, this is many to one function, many to one function। तो ये इंजेक्टिव फंक्शन है? नो, दिस इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। इज दिस अ सर्जेक्टिव फंक्शन? सर्जेक्टिव का मतलब क्या है कि डोमेन, सॉरी, को डोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। तो जो मदर है उसका कोई बच्चा तो होगा ही, तभी जाके उसको मदर बोलेंगे ना। कोई मदर को हम मदर कब बोलेंगे? जब उसका कोई बच्चा हो, ठीक है, अदरवाइज तो हम नहीं बोलेंगे। सो दिस इज a surjective function, so every mother has at least one child, okay, that is why we call them mother। Okay, so this is a surjective function। Next, function is defined from R to R, set R to set R, means दोनों set same है, and function is x square wherein x belongs to the real number, ऐसा है। यानी कि ये set R है, this is also set R, both are real numbers, okay, ये both are real numbers, okay, and the function is x square। now कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, -1 लिखते हैं, 1 0 2 -2 ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 0, ठीक है। -1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1। सो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये मैनी टू वन फंक्शन है, दिस इज नॉट वन टू वन, इट मीन्स कि ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो इंजेक्टिव तो नहीं है, तो ये और ये तो निकल गए, ठीक है। नाउ 0 का मैपिंग विद 0, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड -2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4। सो इज दिस अ सर्जेक्टिव फंक्शन? सर्जेक्टिव मतलब क्या, कि सर्जेक्टिव का मतलब होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। नहीं, यहां पर तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे, बिकॉज आर इज अ रियल नंबर। ओके, सो 3 का कोई मैपिंग यहाँ नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम, आप बोल सकते हो यहाँ पर हम √3 डाल सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो 3 का हमने √3 कर दिया, but this is a real number, so here I can put even -1। तो -1 किसका स्क्वायर है? तो -1 तो एक इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर है, और imaginary number is not allowed, we are not allowed to put here, so this is not even a surjective function, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट हमें मिलने वाला नहीं है। ये एक वो एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, so this is not injective, this is not surjective, तो आंसर इज ऑप्शन डी, नन, ठीक है। Now let's come here. F of x, once again, two sets, both are real numbers. Function is defined as x square plus x, wherein both are real numbers. So once again, 1 तो डाल दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम हाफ भी लिख सकते हैं और एक 2 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स सी, 1, if I put x is equal to 1, तो x square is nothing but 1 square plus 1, 1 square plus 1 is equal to 2, तो 1 का मैपिंग तो 2 के साथ कर दिया हमने। -1 का स्क्वायर, सो -1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 - 1 इज 0, तो -1 का मैपिंग विथ 0, 0 तो का तो मैपिंग 0 ही है। सो अब देख लो, -1 का मैपिंग भी 0 हो रहा है, एंड 0 का मैपिंग भी 0 है। सो दिस इज मैनी टू वन फंक्शन, दिस इज नॉट वन ऑन वन फंक्शन, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। नाउ वी जस्ट नीड टू सी कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन मींस सर्जेक्टिव फंक्शन,
नाउ हाफ का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 1/4 प्लस हाफ। ओके, सो ये एक फ्रैक्शनल नंबर होगा, ये एक फ्रैक्शनल नंबर होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 1 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, सो ये तो 3/8 हो गया। सो 3/8 आई कैन पुट हियर, दैट्स परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। एंड 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, ऐसे बन जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जिसकी आपको मैपिंग नहीं मिलेगी, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिसकी मैपिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका आपको प्री इमेज यहाँ पर नहीं दिखेगा, सो दिस इज नॉट इवन एन ऑन टू फंक्शन। सो ना ये ऑन टू है, ना ये 1 on 1 है, सो आंसर इज डी। both are many to one function and into, both are many to one function and into। चलिए नेक्स्ट, f of x is equal to e raised to x, both are real numbers। So if I put x is equal to 1 minus 1 0 2 minus 2, the function is e raised to x, यानी कि if x is equal to 1 this will become e raised to 1। function is, if x is equal to -1, function बन जाएगा e raised to -1। now e raised to 0, e raised to 0 is 1, then e raised to 2 and this will become e raised to -2। आप देख रहे हो सबकी अलग अलग मैपिंग है, ऐसा है, सबका अलग अलग वैल्यू है। ओके, सो दिस इज 1 on 1 फंक्शन, दैट इज ट्रू, 1 1 फंक्शन तो है, बट हमें देखना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो वंस अगेन आई कैन से हियर दैट कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसका आपको प्री इमेज नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन इज ई रेज टू एक्स ना, तो बहुत सारे ऐसे नंबर निकल के आएंगे जिसका आपको इमेज नहीं मिलेगा। सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है, 1 on 1 फंक्शन है। सो आंसर इज ऑप्शन 1, 1 on 1 फंक्शन बट नॉट ऑन टू। चलिए नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 फाइंड एफ फाइव। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 5, सो दिस विल बिकम 5 स्क्वायर प्लस 3 into 5 plus 2, so this is 25 plus 15 plus 2, 25 plus 15 40, 40 plus 2 is 42, 42 is the answer। next, inverse of a function। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है, नाम के जैसा ही है, उल्टा जाना है बेसिकली। सपोज एक मशीन है, एक मशीन है, वो मशीन ऐसा है कि उसमें अगर आप एप्पल डालते हो तो पेड़ बाहर निकल के आता है। ओके, एप्पल डालेगा पेड़ बाहर निकल के आएगा। तो उसका अगर हम इन्वर्स करते, मान लेते ये एक फंक्शन एफ है जिसका काम है एप्पल को पेड़ बना के लेके आना, ठीक है। सो एक एक दूसरा मशीन है जो एग्जैक्टली इसका पहले वाले मशीन का अपोजिट काम करता है, यानी कि उसमें पेड़ डालोगे तो वापस वो एप्पल बना के देके आएगा। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि एक सपोज फंक्शन है wherein the input is x and output is y, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा कि वापस हमें उल्टा बैक टू स्क्वायर वन जाना है, y इनपुट डालोगे तो x आउटपुट आ जाना चाहिए। ओके, सो सपोज देर इज अ फंक्शन वेर इन 1 का मैपिंग इज विथ a, 2 का मैपिंग विथ b, 3 का इमेज इज c एंड 4 का इमेज इज d। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स ये हो जाएगा कि ये इनपुट बन जाएगा और ये आउटपुट हो जाएगा, ए एरो ऐसे हो जाएगा यहां से ऐसे, ठीक है, लाइक उल्टा। So inverse would be something like this. Perfect. Okay. Now, अगर कोई फंक्शन का इनवर्स निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे? So suppose there is a function that is equal to 3x plus 2. इसको हम y नाम दे देते हैं। Okay, now here I can say कि x is an independent variable and y is a dependent variable. Correct? ये वो एलिमेंट है, ये x, ये वो सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स x है और ये दूसरा वाला सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स y है, एंड द रिलेशन इज
3x plus 2, अभी हमें उल्टा जाना है, यहां से यहां जाना है. So in the function f of x which is equal to 3x plus 2, x is an independent variable and y is dependent on it. But अगर हम इसका inverse निकाले, so I can say कि y has to become an independent function and x should become a dependent function. यानी कि ये वाला इक्वेशन हमने किसके फॉर्म में लिखा है? आप देख रहे हो y is equal to something of x. This is how we have written. So this is function of x. अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है तो हमें x is equal to something के फॉर्म में लिखना है. x is equal to something. तो बेसिकली इसका उल्टा करना है. So how we will do this is 3x plus 2 is equal to y. So from this I can say that अभी हमें x को सेपरेट करना है. So I can say that कि 3x is equal to y minus 2. So x is equal to y minus 2 upon 3. x is equal to y minus 2 upon 3. ये तो हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए y डाला था. एंड में इस y को चेंज करके x बना देना है. सो आंसर इज x minus 2 upon 3. आंसर इज x minus 2 upon 3. यानी कि एक फंक्शन है विच इज फ्रॉम wherein the independent variable is x and dependent variable is y, और इसका अगर फंक्शन ऐसा है y is equal to 3x plus 2, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? x minus 2 upon 3. करेक्ट. ये f of x है, तो यहाँ पर f dash x ये बन जाएगा x minus 2 divided by 3. परफेक्ट. कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालने अभी हमें आ सकता है, कुछ आगे क्वेश्चंस भी करेंगे हम. नाउ so let's understand basically what is an inverse of function. An inverse function or an anti-function is defined as a function which can reverse into another function. In simple words, if any function f takes x to y, then inverse of x they will take y to x. एक में अगर हम x से y जा रहे तो inverse में y से x जाना है. ठीक है. ओके, इफ द फंक्शन इज डिनोटेड बाय f और कैपिटल F, तो इनवर्स को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो. दिस इज हाउ वी कैन डिनोट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. वन शुड नॉट कंफ्यूज विथ -1 विद द रेसिप्रोकल. ये ऐसा नहीं है कि इसका रेसिप्रोकल है तो इसको ऐसे नहीं लिख देना है. ठीक है, ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये इनवर्स का सिंबल है. नाउ इफ f and g आर इनवर्स फंक्शंस, then f of x is equal to y if and only if g of y is equal to x. इसमें से एक चीज आप बता सकते हैं क्या कि ये फंक्शन इनवर्स कब पॉसिबल है? फंक्शन इनवर्स कब पॉसिबल है? फंक्शन का एक बेसिक डेफिनेशन होता है कि डोमेन का and all the elements of the domain should have an image in the codomain. तो मान ले कि अगर एक ऐसा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स पॉसिबल है, ये हमने ऐसा इसका इनवर्स निकाला. बट सपोज देयर इज अ फंक्शन लाइक दिस. एक मैनी टू वन फंक्शन बनाते हैं हम. कौन सा फंक्शन बनाते हैं? मैनी टू वन फंक्शन बनाते हैं ऐसे. दिस इज अ मैनी टू वन फंक्शन. ओके, दिस इज फंक्शन एक्स. तो इसका इनवर्स क्या बन जाएगा? इसका इनवर्स कुछ ऐसा बनेगा. उल्टा करना है तो ए बी सी यहां पर आ जाएंगे, 1 2 3 यहां आ जाएंगे. ए का मैपिंग है 1 और 2 के साथ एंड सी का मैपिंग है 3 के साथ. क्या ये एक फंक्शन है? पहली बात तो इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन होना चाहिए ना. तो इनवर्स फंक्शन को भी फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करने पड़ेंगे. फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऐसा मैपिंग नहीं होना चाहिए. दैट इज वन. सेकंड थिंग, यहां पर एक एलिमेंट भी खाली रह गया. सो ये इनवर्स फंक्शन बना नहीं. इट मींस कि मैनी टू वन फंक्शन में इनवर्स पॉसिबल नहीं है. इनवर्स ऑफ फंक्शन पॉसिबल नहीं है. इट मींस कि 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए, देन ओनली इनवर्स इज पॉसिबल. 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए, देन ओनली इनवर्स इज पॉसिबल. इनफैक्ट सर्जेक्टिव फंक्शन भी होना चाहिए. को डोमेन बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर को डोमेन जैसे इसमें खाली रह गया तो को डोमेन आगे जाके डोमेन बनने वाला है. सो इट मींस कि वो वाला जो फंक्शन है ये 1 on 1 फंक्शन होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए. ठीक है, चलिए.
So inverse of a function is possible only in one-on-one function and on-to function. One-on-one function भी होना चाहिए and on-to function होना चाहिए, then only inverse is possible. Means inverse is possible only in case of बाइजेक्टिव फंक्शन, बाकी किसी में भी पॉसिबल नहीं है. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कौन करता है? बाइजेक्टिव फंक्शन सेटिस्फाई करता है. चलिए नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. वंस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन. Every relation has its inverse relation, but every function does not have its inverse relation. हर एक रिलेशन का इनवर्स पॉसिबल है, लेकिन हर एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है ये जरूरी नहीं है. अगर फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है then only inverse is possible, otherwise inverse is not possible. ठीक है. After applying the function and its inverse function, inverse input and output will be same. चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 3x by 2, 3x plus 2 upon x minus 1. ठीक है. तो टाइम बीइंग इसको हम y बोल देते हैं, f of x को हम क्या बोल देते हैं? y बोल देते हैं. तो हियर x is an independent variable, करेक्ट, एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू चेंज होगी. इसका अगर हमें इनवर्स करना है तो हमें उल्टा करना पड़ेगा. y को एक इंडिपेंडेंट फंक्शन बनाना है एंड x को एक डिपेंडेंट फंक्शन बनाना है. यानी कि यहाँ पर y को हमें x के फॉर्म में लिखा है, हमें उल्टा करना है, x को अभी y के फॉर्म में लिखना है. सो x को सेपरेट करना है. हाउ टू सेपरेट द x? सो फॉर दैट वी विल डू लाइक दिस. क्योंकि हमें x को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, x x साथ में ले लेंगे. तो yx माइनस 3x और ये साइड पे आ जाएगा तो 2 plus 1 is equal to 3. सो 3 is equal to x is y minus 3. तो हमने x को कर दिया सेपरेट. x is equal to 3 upon y minus 3. वेट शायद कुछ गलती किया मैंने. अच्छा ये yx माइनस y है. दिस इज yx माइनस y. ओके yx माइनस y है. सो x को यहाँ भेज देते हैं. सो yx माइनस 3x एंड दिस इज 2 plus y. सो 2 plus y is equal to x को बाहर ले लेते हैं. क्यों x को बाहर लेना है? क्योंकि हमें x को सेपरेट करना है इसीलिए. सो x कैन बी रिटर्न एज y plus 2 upon y minus 3. एंड में y को रिप्लेस करना है x के साथ. y को रिप्लेस करना है x के साथ. तो आंसर बन जाएगा x plus 2 upon x minus 3. दिस इज द आंसर. f inverse of x is equal to x plus 2 upon x minus 3. Which of the following function is inverse of itself? Inverse of itself का मतलब क्या है कि f of x जो है वो ही आपका f dash x बन जाना चाहिए, f inverse x बन जाना चाहिए. f of x वही f inverse x बनना चाहिए. दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए. देन ओनली वी कैन से कि ये एक इनवर्स फंक्शन है. सो लेट्स ट्राई विद दिस. f of x is equal to 1 minus x upon 1 plus x. इसका इनवर्स निकाल लेते हैं. So let us assume this as y. We will write everything in the form of x now. So 1 minus x is equal to y plus xy. x को यहाँ भेज देते हैं और y को यहाँ भेजते हैं. तो ये बन जाएगा 1 minus y upon 1 minus y is equal to xy plus x. So 1 minus y is equal to, x को हमने सेपरेट कर दिया है. एंड में क्या करना है, y को x से रिप्लेस करना है. तो ये आ गया इनवर्स ऑफ द फंक्शन. अभी आप देख रहे हो फंक्शन क्या था, फंक्शन वाज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और इनवर्स भी यही आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. इट मींस कि यही इनवर्स फंक्शन है. करेक्ट.
सेम आ गया ना, फंक्शन और उसका इनवर्स बोथ आर सेम। नेक्स्ट, कंपोजिट ऑफ फंक्शन। Composite functions means two or more than two functions. So if there is a function which is from A to B and there is a function G which is from set B to set C, be two functions means there are three sets. कितने सेट है? तीन सेट है. This is set A, this is set B and this is set C. A से B के बीच में एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम दिया है f, एंड B से C के बीच में एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम दिया है हमने g. It is like this. Okay. So composition of f and g is denoted by g of f. क्या बोलेंगे इसको? g of f. gof. क्या बोलेंगे? gof. gof यानी कि g of f. So what is gof? gof is nothing but the function from a to c. अभी a to c का फंक्शन कैसा है? तो a to c का फंक्शन के लिए पहले हमें a to b जाना पड़ेगा, फिर b to c जाना पड़ेगा, तब जाके हमें फंक्शन a to c मिलेगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गॉफ. तो गॉफ इज नथिंग बट g ऑफ fx. क्या बोलेंगे? g ऑफ fx. ऐसे लिखा जाएगा, g ऑफ fx. ओके, सो गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx. यहां पर g बाहर होगा, एंड फॉग x इज इक्वल टू f ऑफ gx. तो आप देख रहे हो कि गॉफ एंड फॉग में फर्क है, गॉफ एंड फॉग में फर्क है. ठीक है, सो गॉफ ऑफ x, g ऑफ सॉरी g ऑफ fx को हम बोलेंगे गॉफ x, एंड f ऑफ gx को हम बोलेंगे फॉग x. ठीक है, इसका हम मतलब समझते हैं तो समझ में आएगा. इतना ख्याल रखें कि g ऑफ गॉफ को हम g ऑफ fx लिखना है और फॉग को हमें f ऑफ gx लिखना है. ये आपका फॉर्मूला के लिस्ट में ऐड कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो गॉफ एंड फॉग आर नॉट सेम, उल्टा है ये दोनों एक दूसरे के. तो ये वाला जो फंक्शन है ये है g ऑफ fx. कौन सा फंक्शन है? g ऑफ fx. यहां से यहां जाने के लिए हम गॉफ यूज करेंगे, और c से अगर a में वापस आना है तो हम फॉग यूज करेंगे, ऐसे. ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा. नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो फाइंड g ऑफ x फॉर x इज इक्वल टू 2. x की वैल्यू जब 2 होगी तो हमें ये वैल्यू निकालनी है. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? दिस इज नथिंग बट g ऑफ fx. करेक्ट. अभी देखिए g ऑफ x क्या है? g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, बट ये g ऑफ x नहीं है, ये बोल रहे हैं g ऑफ fx. यानी कि g के अंदर x नहीं डालना है, g के अंदर फंक्शन ऑफ x डालना है. तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर. ये x था, यहां पर x था तो हमने x लिखा. हियर इट इज fx, तो हम यहाँ पर fx लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे f ऑफ x का स्क्वायर. फंक्शन ऑफ x क्या है? 2x प्लस 1. सो दिस इज 2x प्लस 1 का स्क्वायर. 2x प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सो दिस इज नथिंग बट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. ऐसा बन जाएगा. नाउ पुट x इज इक्वल टू 2. सो x इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1. So this is nothing but 16 plus 8 plus 1, that is equal to 25. इसकी वैल्यू हो जाएगी 25. ठीक है. सिमिलरली अगर आपको f ऑफ g ऑफ x निकालना है, ऐसे निकालना है, तो हम देखेंगे कि f ऑफ x क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1. बट हमें f ऑफ x नहीं निकालना, हमें f ऑफ g ऑफ x निकालना है. यानी कि जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमें g ऑफ x लिखना है. ऐसा है. x की जगह पे हमने क्या लिख दिया? g ऑफ x. सो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू जी ऑफ x क्या है? x स्क्वायर. तो 2x प्लस 1 की जगह पे हमें लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 1.
2x square plus 1. Now if x is equal to 2, x की वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? That is equal to 9. So answer here it is 9. I hope ये आपको समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. f of x is equal to sin x and g of x is equal to x square. तो आपको निकालना है f of g of x. Now f of x is equal to sin x, बट हमें x की जगह पे g of x लिखना है. तो दिस इज नथिंग बट sin into x की जगह पे क्या लिख दोगे? g of x, that is x square. So it is sin x square. This is the answer. Similarly अगर आपको कोई पूछे gof of x, g of x is x square, बट हमें x की जगह पे f of x लिखना है. x की जगह पे f of x लिखना है. x की जगह पे f of x, तो ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर. sin x का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट sin स्क्वायर x. ठीक है, चलिए. f of x is equal to 2x plus 3 and g of x is equal to minus x square plus 1. Find the composite function defined by fog x, यानी कि हमें निकालना है f of g of x. ये निकालना है. परफेक्ट, ये निकालना है हमें. दिस इज नथिंग बट f के अंदर एक फंक्शन है gx, तो हमें इस फंक्शन के ऊपर काम करना है, लेकिन x की जगह पे डालना है gx, x की जगह पे डालना है gx. तो 2 तो लिखा ही, अभी x की जगह पे हम लिखेंगे gx. gx क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो जहां जहां x दिखेगा वहां लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ऐसा बन जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3. So answer is option number A. Option A is the correct answer. ठीक है, चलिए. इसमें अगर हमें g of x निकालना होता, g of fx निकालना होता, तो कैसे निकालते? यानी कि आपको निकालना है gof. तो ये कैसे निकालते? तो हियर वी नीड टू वर्क ऑन दिस फंक्शन, क्योंकि बाहर तो g है ना, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस. तो माइनस एज इट इज, x की जगह पे हमें फंक्शन ऑफ x लिखना है. x की जगह पे फंक्शन ऑफ x लिखना है, और फंक्शन ऑफ x क्या है? 2x प्लस 3. ये बन जाएगा इसका आंसर. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 6x का डबल 12x प्लस 9 प्लस 1. सो दिस इज नथिंग बट ऐसा कुछ बन जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू, इट वुड बी लाइक दिस. ठीक है, okay, so I hope you have understood this particular video. In the next class we are going to discuss a very important part, that is domain and range of function. ये module 4 और module 5 से ही maximum questions बनते हैं function and relation के. So please watch this video also, and till then keep on practicing math, because math is easy. Thank you.